So chalo, let's start it. सबसे पहले a very warm welcome to each one of you guys. I am truly excited to see so many of you curious and committed minds over here. So guys, for the next few days, you're not just going to attend a simple webinar. What you guys are going to do is that you're going to step into a journey of self-discovery, clarity, and transformation. And I am genuinely excited to see all of you over here. I truly believe कि ना अपन लाइफ में कुछ भी happen नहीं होता है without any chances. And if you are a part of this session, so I know that there's something hidden in your journey which is going to unfold right now. Over the next few days, it can be 7 days or 9 days, whatever it may be. This webinar is going to help you start understanding how numbers will start make sense in your life. एंड आपकी जो लाइफ है ना उसको मोर क्लियरर बना देगी और आपको क्लियर पिक्चर्स दिखने चालू हो जाएंगे आपके लाइफ के. सो व्हाट आई वांट इज दैट एवरीवन वांट आई वांट एवरीवन टू बी प्रेजेंट. Keep your minds open and allow this wisdom to flow in your mind easily. अगर आपको न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है, कुछ आता जाता है, तो इट्स वेल एंड गुड, कीप इट टू योरसेल्फ because we are going to learn many more new things out over here. So if you guys are excited, just type in the chat box excited, guys. Great. Simranjit is saying it. Yes. Hemant is saying excited. Anu is saying great. That's awesome. That's awesome. That's awesome. So I'm going to promise you one thing. Like you will walk away certainly with some great insights के साथ जाने वाले हो. And the way you're going to look at your life, immediately within next 5 days, you will start seeing drastic changes. कि oh अच्छा ये ऐसा होता था, वो ऐसा होता था. There will be thousands of questions which might be running in your mind अभी correctly. So इसके आपको बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं जल्दी. ठीक है. तो अभी विल स्टार्ट अ न्यूमरोलॉजी का सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू. यू कैन टाइप इन एनीथिंग एंड आई वांट अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन गाइस बिकॉज अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो यू आर आल्सो नॉट गोइंग टू लर्न एंड मैं भी फिर मेरा मोटिवेशन लूज कर देता हूँ कि हाँ चलो दीज गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड तो चलो ऐसे ही चला देते हैं. तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ वेबिनार टू हैपन. आई वांट यू गाइस टू बी वेरी एक्टिव, बी पार्टिसिपेटिव इन दिस सेशन. You can type in short, one word, two word, three words, whatever you feel like, and you can put in over here. And there's nothing right. कोई भी चीज right नहीं है, कोई भी चीज wrong नहीं है. Whatever you guys feel, you can put in. Anu is saying it's all about numbers explaining present and future. What about others? Make you understand people. Absolutely correct. Right, Anu. Guys, participate. Type in. Karan, every number has a meaning and every number chooses us. Absolutely, Karan. You said very well. It's a belief system, right? Number guides and tells you past and future more precisely. Yes, true. To great extent, yes, Sanjay ji. Simranjit, relationship between numbers and life and events. Correct, great. So all of you are right over here. None of you have said anything wrong. As I said, there's nothing called as the exact definition of numerology. So only numbers are with a birth number. No, numbers are everywhere. It's not only your birth number. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा या गाइडेंस है. करेक्ट. सो न्यूमरोलॉजी होता क्या है? इट्स अ एंशिएंट साइंस ऑफ नंबर्स दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड आवर पर्सनालिटी, अपने जो स्ट्रेंथ्स है, चैलेंजेस एंड अपने जो लाइफ पाथ अपन क्या चूज करते हैं. बहुत बार आप लोग ने देखा रहेगा कि आदमी पढ़ता कुछ और है पर वो काम कुछ और करता है. या तो काम कुछ और कर रहा होता है, उसने कुछ सोचा कुछ और रहता है एंड देन थिंग्स डजंट वर्क वेल. एंड बहुत बार अपन ऐसा दिखते हैं यार ये आदमी तो कितना सक्सेसफुल हो गया. द ओनली रीजन इज बिकॉज उसने अपने लाइफ पाथ को उसके नंबर के साथ कोइंसिडेंटली या नोइंगली और अननोइंगली उसने उसको अलाइन करके रखा था. एंड दैट इज द रीजन दैट हैज हैपेंड. So numerology, it helps you to reveal how numbers are connected to our date of birth, our name, our thoughts, our decisions, and even our destiny. Correct. So simply put, numerology, it helps you to align your life with the right timing and the right decision. Understood, everyone? If it's clear, just tap in C in the chat box, guys. Quickly, so that we can take it further. Great. Cool, cool. Thank you so much for being so active over here. So numerology आया कहाँ से?
एनीवन हैज एनी आइडिया यू कैन पुट इन, अगर आप लोग ने कुछ सुना होगा किधर से क्या आया है, तो यू कैन पुट इन फ्रॉम वेयर डिड वी गेट आवर न्यूमरोलॉजी. एनीथिंग यू कैन. एंशियंट टाइम से, करेक्ट, यस एंशियंट टाइम से. निशा इज सेइंग वेदों से आया, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट. Cool. So basically, this numerology has come from our ancient scriptures and Granth. It is not a Western, yeah. जैसे अभी आपने लिखा ancient Egypt से, no, it is not from ancient Egypt. It is not from Western countries. ये जब चीरो और पाइथागोरस, पाइथागोरस थियरी आप लोग ने सबने स्कूल में पढ़ी होगी, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है. ये जब इंडिया में आए थे, इन्होंने इसको एकदम डिटेल में पढ़ा. एंड देन अगेन एज यूजुअल, लाइक ये लोग बाहर जाके चोरी करते हैं अपनी चीजों को, एंड देन दे पुट देयर नेम्स, लाइक योगा के साथ किया है, आयुर्वेदा के साथ किया है, बहुत सारी चीजों के साथ किया है. द सेम थिंग दे डिड विद आर न्यूमरोलॉजी आल्सो. एंड इसको ये लोग ने इंडिया में सीखा और इसको जाके बाहर स्प्रेड करना चालू किया. अंडरस्टूड नाउ. सो अगले टाइम कोई तुमको बोले कि ये बाहर से आया, तो नो, टेल देम कि ये इंडिया की संस्कृति है, ये इंडिया से ही आया है. बिकॉज ये हमारे ग्रंथों में लिखा था, इसको शिव जी ने, जितने भी सप्त ऋषि थे हमारे एंशियंट टाइम्स में, उन सबको ये नॉलेज दी थी. कूल, कर. सो नाउ लेट्स गो टू हाउ लाइफ इज रूल्ड बाय नंबर्स. सो गाइस, व्हाट डू यू फील, ये नंबर्स जो है अपने को अपने लाइफ में कितना इफेक्ट करते हैं? हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज नंबर्स इन आवर लाइफ? क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन. एंड सबको रिकॉर्डिंग दिख रही है राइट? रिकॉर्डिंग का वो बटन रेड वाला, तो जस्ट पुट इन. ओके, नो आइडिया अभी. Any random thoughts you can put in? There's nothing right and nothing wrong over here, guys. All random thoughts you can put in, whatever you feel like. It's very important if we understand them correct for a future and guess. All right, great. So, देखो दोस्तों, our life is ruled by numbers. Try to understand that. From the time अपना बर्थ होता भी नहीं है, लाइक वी आर इन आवर मदर्स वूम, फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ अपने नंबर्स चालू हो जाते हैं. लाइक मॉम है जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है, करेक्ट, तो एक नंबर आ गया. फिर उसके बाद जब अपना बर्थ होता है, तो अपना बर्थ डेट मिलता है. उससे पहले जब मॉम आपकी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो उनको एक बेड मिलता है, वो बेड का नंबर होता है, रूम का नंबर होता है. आप जब पैदा होते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, आपका टाइम ऑफ बर्थ होता है, करेक्ट, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ होता है उसका भी टोटल करेंगे तो उसका एक नंबर होता है. सो नंबर्स रिवॉल्व अराउंड अस फ्रॉम द टाइम वी आर born till the time we are going to die. Tomorrow if suppose I am going to die, so there will be a death certificate of me, और डेथ सर्टिफिकेट पे एक नंबर लिखा रहेगा, करेक्ट. सो एवरीथिंग हैज अ नंबर एवरीवेयर. आप कार में ट्रैवल करते हो, आपके कार का नंबर है, बाइक में ट्रैवल करते हो, आपकी बाइक का नंबर है, फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, किधर भी ट्रैवल करते हो, तो यू हैव दोस नंबर्स कि ट्रेन नंबर सो एंड सो, ये प्लेटफॉर्म पे आएगी, प्लेटफॉर्म का नंबर है. आपका एडमिशन लिया था आपने स्कूल में, तभी आपको रोल नंबर्स मिले थे, आपका क्लास का नंबर था, आपके टीचर्स के नंबर्स थे, सभी चीज के नंबर मिलेंगे. सो वी ऑल आर सराउंडेड बाय नंबर 24/7 फ्रॉम द टाइम वी आर born टिल द टाइम वी आर गोइंग टू लीव दिस प्लेस. आपने रिजल्ट्स आपके आए तो उसमें आपको नंबर्स मिले, रैंक्स जो आए आपको नंबर्स मिले, इवन आपके जो बेसिक बैंक अकाउंट्स है उसमें आपको नंबर्स मिलते हैं, व्हीकल में नंबर्स मिलते हैं, हाउस में मिलते हैं, फ्लैट नंबर सो एंड सो, फ्लोर नंबर सो एंड सो, बंगलो नंबर सो एंड सो, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, everywhere, everywhere. So everyone is clear now how important these numbers are in our life. Just type in C if you guys are clear. Cool. Great, great, great. Thank you so much for participating so actively. So होता क्या है guys? These numbers से अपन we are surrounded all over 360 degree and इनका impacts अपनी life में बहुत ज्यादा करता है. If you are born with a good number, then अच्छे रूप में इफेक्ट करता है. If you are born with some karmic numbers,
तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, बट देन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने आपको आप अच्छे नंबर से बॉर्न हुए रहोगे। तो अभी आप लोग पूछोगे अच्छे नंबर्स क्या होता है और बैड नंबर्स क्या होता है, तो ऑल द नंबर्स आर गुड, देयर इज नथिंग गुड और नथिंग बैड अबाउट द नंबर्स बिटवीन 1 to 31। सबके कैलेंडर में 1 से 31 ही होगा, राइट? सो 1 से लेके 31 जितने भी नंबर्स है ऑल आर गुड इक्वली। भगवान ने बनाए हुए नंबर्स है, ये यूनिवर्स ने दिए हुए नंबर्स है अपने को, बट देन देयर आर फ्यू कार्मिक नंबर्स which gives more impact to those person who are born with those karmic numbers especially because होता है उनके साथ क्या है, they carry excess past baggages with them and उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे जाके क्या होता है कार्मिक नंबर्स और क्या होते हैं नॉर्मल नंबर्स, विच आर गुड नंबर्स बैड नंबर्स एवरीथिंग। सो जो कार्मिक नंबर्स वाले होते हैं वो बेसिकली होते हैं थोड़े ज्यादा सफरिंग करने वाले होते हैं, उनको लाइफ में चैलेंजेस थोड़े ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल नंबर्स विच आर गुड नंबर्स। Clear with everything, guys? Any doubts? You can raise your hands and let me know if there are any doubts. Cool. ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है, अगर मेरे पास कोई मोबाइल नंबर है, आई कैन चेंज माई मोबाइल नंबर। अगर मेरे को कार चाहिए तो आई कैन चेंज माई कार नंबर। ठीक है। आई कैन चेंज माई बैंक अकाउंट नंबर, आई कैन चेंज माई फ्लैट नंबर, आई कैन चेंज ऑल द अदर नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली, बट देन कैन यू चेंज योर डेट ऑफ बर्थ? नहीं कर सकते, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट पावर टू चेंज योर डेट ऑफ बर्थ? कि नहीं मैं तो एक को नहीं, मैं तो 4 को पैदा हुआ था, 2 को नहीं मैं तो 6 को पैदा हुआ था। इन द रियलिटी आप लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट देन इन रियलिटी कैन यू चेंज दैट? नो, हेमंत इज सेइंग नो। व्हाट अबाउट अदर्स? Karan is also saying no. Great. So in reality, we can never change our birth number at all. आप कितने भी छोटे से छोटे आदमी हो या मुकेश अंबानी हो, आप आपका बर्थ नंबर चेंज नहीं कर सकते। अपन कर क्या सकते हैं इसके साथ? अभी जो नंबर जिसको मिला है, अगर अच्छा नंबर मिला है तो वेल एंड गुड, अगर कोई इसको कार्मिक नंबर मिला है तो वेल एंड गुड। तो क्या ऐसा नहीं है कि उस बेचारे की लाइफ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? देयर आर गुड न्यूज इज दैट वी कैन बैलेंस दिस नंबर। Okay, and how? We have a tool which help us to balance this number, and that tool is called what? Type in what it is called. Jaldi. Numerology. Great, correct. Absolutely. So that tool is called numerology, what we are learning right now. So this numerology is going to help you balance your numbers, balance your charts according to your date of birth, whatever it is. अच्छी है बुरी है उसको अपन आगे जाके समझेंगे। अपने मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट। यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसका बुरा नहीं किया, मेरी लाइफ कब सही होगी, मुझे नया जॉब कब मिलेगा, मुझे लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा हेल्थ कब ठीक होगा। है ना? आप सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क है जिसके आंसर्स आपको अभी तक मिले नहीं है। करेक्ट? सो न्यूमरोलॉजी से गाइस यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस जो भी आपके लाइफ में चल रहे हैं। सो यू विल गेट दोज आंसर्स एंड ट्रस्ट मी न्यूमरोलॉजी विल गिव यू लॉट ऑफ आंसर्स। आपके जो भी पिछले 10 20 25 50 साल के आप हो आज के तारीख में, आपको जो आंसर्स आपके लाइफ में आज तक नहीं मिले हैं, you will definitely get lot and lot of clarity in your life in the next 5 to 6 days itself कि ओ ये बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड ठीक है भाई ये तो इसका ट्रेड था ना, चलो जान दो मैं माफ करता हूँ। तो आपके मन में जिस भी इंसान के लिए कलेश होगा, कुछ भी होगा, ग्रजेस होगा, यू विल लीव दैट और यू विल गेट योर ओन आंसर। अच्छा ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अच्छा आई एम रूल्ड बाय दिस नंबर, ओके चलो ठीक है। सो आपके जो दिमाग में जो मेट्रो चलती है ना ये थॉट्स को लेके, दैट विल स्टार्ट गोइंग धीरे 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 करके। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी आंसर योर क्वेश्चन बिफोर इट्स। अभी आप पूछ रहे होगे कि न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ को काम कैसे लेते हैं, करेक्ट? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग लिख लो, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू नीड टू राइट डाउन नाउ। जब मैं लिखने बोलूँ तो आप लिखना, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। जब अगर आप एडवांस कोर्सेज में आते हो तो उसमें आपको ये चीजें बहुत काम आएगी। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज
If you have a original exact date of birth of yours, we will consider only that. न्यूमरोलॉजी में अगर अपन को प्रेडिक्शंस लेने होते हैं तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स वी नीड टू कंसीडर. द सेकेंड थिंग इज, इन न्यूमरोलॉजी अपन टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं. दैट इज द टाइम ऑफ बर्थ. द थर्ड थिंग इज, इफ मैं पास जा रहा हूं तो बोल देना इधर स्लो करके चैट में, बिकॉज आप लोग को लिखने की आदत नहीं होगी एंड मैं आपको बहुत लिखाने वाला हूं. The third thing is, we don't consider place of birth like in astrology. The next thing is, आप लोग जब आगे जाके कंसल्टेशंस लोगे या गाइडेंस करोगे आपके फैमिली फ्रेंड्स का, तो बहुत बार ऐसा होगा कि जो अपने मम्मी पापा की जनरेशन है उसमें उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं रहती है बहुत टाइम. ऐसा अपने को मालूम ही नहीं रहता कि अपने फैमिली में इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है करके. बट देन द थिंग इज दैट इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन हैज गॉट देयर आधार कार्ड, पैन कार्ड. 99% एवरीवन हैज गॉट, छोटा बच्चे से लेके बुढ़े तक. तो जो भी उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, दैट विल बी द डेट ऑफ बर्थ टू कैलकुलेट एंड डू प्रेडिक्शंस आगे जाके. Is everyone clear till now? Just type in yes, why. Great. हेमंत जी, करण जी, संजय जी, निशा. Cool. Great, great. Now, अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो बंदा बोलता है भाई मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, मेरे पास तो पैन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, तो क्या करोगे? एनी आइडिया? टाइप इन, क्या कर सकते हो उस केस में? व्हाट डू यू गाइस फील? एक चीज बताना, अगर मान के चलो जैसे आपने बोला कि अगर उसके पास कोई ओरिजिनल डीओबी नहीं है, यू कैन कंसिडर आधार कार्ड, डीओबी और पैन कार्ड. बट वो तो आई थिंक इट्स अ रैंडम बेसिस होती है ना. तो हम कैसे उस चीज से ये चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वही बंदे की जो है लाइफ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हाँ, तो होता क्या है. क्योंकि इट्स ऑल ऑन अ रैंडम बेसिस, कोई भी कुछ ग्रेट, भी डाल देता है. ग्रेट क्वेश्चन. पर अगर सपोज यू आर अ 50-60 ईयर ओल्ड गाय, अभी अपने जनरेशन वालों की तो चांसेस ही नहीं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी. इट इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन जो अपने माता पिता की जनरेशन वाले हैं, ठीक है. तो अगर उन्होंने दे आर 50-60-70 ईयर ओल्ड, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट देन उनकी जो एक पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ आ गई है XYZ, लाइक व्हाट्स द डेट टुडे, इट्स 19/1/2026, तो लेट्स से इट्स 19/1/1947, उन्होंने वो डेट ऑफ बर्थ डाल दी है. तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ना, उन्होंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस नंबर्स की एनर्जीज लेना चालू कर दिया है. एंड आप जब भी इस नंबर्स की एनर्जीज लेते हो एंड इनकी आप डेट ऑफ बर्थ को प्रेडिक्शन करोगे, तो 99% यू विल फाइंड द इवेंट्स फॉलिंग इन द सेम प्लेस द वे इट इज फॉलिंग फॉर द ओरिजिनल पर्सन. ये एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझेगा. यू कैन. अब जैसे कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, है ना. हाँ, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको अपनी एज भी नहीं पता. दे नॉर्मली सेड कि हाँ हो सकता है आइडिया 50+ होऊंगा मैं, है ना. दे राइट, डिडंट नो द एग्जैक्ट एज और वट एवर जो भी है. तो करेक्ट, जैसे हम, चलो मैं तो वो टैरो से चेक कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ नेम और करंट सिचुएशन. अब इस राइट. केस में हम क्या करेंगे अगर उसको अपना एज भी एग्जैक्ट नहीं पता? ग्रेट. सो इस केस में अपन क्या करते हैं गाइस, लिख लो सब लोग. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. आई वाज जस्ट अबाउट टू कम ऑन दैट ओनली एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड Sir, इट. हाँ. did we write something before this? Like, या लॉट ऑफ थिंग्स वी रोट. I just left the meeting because मेरा laptop discharge हो गया था. अच्छा ठीक है, वी विल डू दैट. यू कैन जस्ट चेक आउट द रिकॉर्डिंग्स. Yeah. देयर आर Okay. 5 points which we have written how to analyze the date of birth. Okay.
या ठीक है, तो ऑरल्स में बाद में आई विल गिव इट टू यू, तो अभी ओके ओके आगे का लिख लो। सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज, जैसे सिमरन ने बोला कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में वो बंदे के पास आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसका प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे। सो उसके लिए होता है समथिंग कॉल्ड एज नेम न्यूमरोलॉजी, एंड दैट नेम न्यूमरोलॉजी से वी कैन डू प्रेडिक्शन। क्लियर एवरीवन? And we are not talking about name numerology right now because that's a completely different thing. I just told you this now because that question popped up. इसके बाद एक और चीज होगी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये टाइम पे 12:03 12:30 को रात को पैदा हुआ, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। स्पेशली विद एस्ट्रोलॉजी पीपल गेट कंफ्यूज कि मेरे को 1 तारीख लेना चाहिए कि 2 तारीख लेना चाहिए, 19 लेना चाहिए कि 20 लेना चाहिए। तो इन न्यूमरोलॉजी आप क्लाइंट को सबसे पहले बोलोगे कि रात को 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे के 12 बजे तक आप कभी भी पैदा हुए, दैट विल बी द डे। सपोज 19th है आज, ओके, नाउ 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद 20 तारीख हो जाएगी 12 बजे। क्लियर? तो 20 तारीख को जैसे 12:01 होता है, 20 तारीख कैलेंडर में आ जाती है, और 11:59 तक 20 तारीख की रात की, दैट विल बी काउंटेड एज 1, दैट विल बी काउंटेड एज 20। तो बंदा हुआ है 20 तारीख को पैदा, 20 जनवरी को। एवरीवन क्लियर? इफ क्लियर जस्ट रेज योर हैंड्स और जस्ट से यस, so that I know. किसको डाउट्स है तो यू कैन गाइस आस्क मी इन द चैट बॉक्स। Cool. So, did you learn something new? What? Please repeat. क्या रिपीट करना है? Yes, you can do. See, कोई भी अकल्ट साइंस, करण या जो भी सुन रहे इधर, बी इट टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, एनी साइंस विल नॉट गिव यू 100% ट्रू प्रेडिक्शंस। अगर कोई पंडित आपको बोलता है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है, कोई टैरो रीडर बोलता है मैं आपको 100% प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ एंड दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन विथ यू, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। बिकॉज भगवान ने इतनी शक्ति अपन को नहीं दी है कि वी कैन ओवर पावर, ओवर रूल गॉड। द मोमेंट एनी वन टेल्स यू कि मैं आपको 100% प्रेडिक्शन देता हूँ कि ये आपके साथ हो जाएगा, उसको दुआ सलाम कर देना और बोलना टाटा बाय बाय, मिलते हैं दुआओं में, याद रखना। ठीक है? बिकॉज वो आपको उल्लू बना रहा है। यू कैन गो अप टू 70%, 75%, देर इज ऑलवेज अ एरर ऑफ 25%, 30% इन दैट। अगर मैं आज बोल दिया किसको कि तुम्हारे को 1 महीने में तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी 1 महीने में उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। देर आर चांसेस 25% कि वो कुछ रेमेडीज कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो वो जाने अनजाने में, तो थिंग्स कैन चेंज फॉर हिम। सिमिलरली मैं कुछ अच्छा बोल दूं किसको कि भाई नेक्स्ट मंथ तो तू एग्जाम में पास हो जाएगा, एंड वो बंदा पढ़े ही नहीं कुछ, एंड वो एग्जाम से उतना लिख के आ जाए कि बोला कि विवान ने बोला कि तू पास हो जाएगा करके, तो क्या वो पास होने वाला है? तो हाउ कैन यू से 100% कि हाँ तू तो पास होने वाला है करके। सो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एनीवन टेलिंग यू कमिटमेंट कि 100% ये होगा ही होगा। देयर इज ऑलवेज लेवरेज रखना है, 20 से 30% का गुंजाइश रहता है कि चीजें ना हो या हो। कोई नेगेटिव चीज है और उसमें 25% में यस वो हो भी सकता है। क्लियर विद दिस? या इवन नेम न्यूमरोलॉजी, कोई भी न्यूमरोलॉजी ले लो सर आप, करण मैं वही बोल रहा हूँ। अकल्ट हो गया, अकल्ट में जितने भी फील्ड्स है, देयर आर मोर देन 3000 फील्ड्स इन अकल्ट। अपन को तो गिन चुन के 5 6 7 8 आते हैं। केपी हो गया, जेमिनी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाल किताब हो गया, टैरो हो गया, डाउजिंग हो गया, रेकी हो गया। तो कोई भी फील्ड ले लो आप, 3000 फील्ड जो है ओवरऑल वर्ल्ड में, कोई भी आपको 100% नहीं दे सकता है। ओके, so till now everyone is very clear because now we are going to start our journey of actually न्यूमरोलॉजी में predictions कैसे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है करके।
नंबर 7 वाला जो था ना, जो टाइमिंग्स वाला था, नंबर 7। जैसे रात को जो, हाँ हाँ, लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे रात को 12 बजे अगर कोई पैदा होता है, सपोज आज 1 जैन है, हाँ आज है ना, अब रात को राइट 12 बज के 1 मिनट में तो 2 जैन हो जाएगा वो, है ना? करेक्ट हाँ। है ना? तो अगर तो बोलो बोलो। रात को 12 बज के 1 मिनट से लेके दूसरे दिन रात को 12 बजे तक का तो अपन 2 तारीख ही मानेंगे, या 11:59 तक। 11:59 हाँ तक। और जैसे 12 बजा फिर उसको 3 तारीख ले लेंगे, राइट करेक्ट है ना? राइट और जो एब्सोल्युटली फर्स्ट वाला जो था ना, जैसे मैंने बोला कि अगर आज 1 तारीख है और रात को 11:59 तक एक ही है, लेकिन जैसे 12 बजे वो 2 तारीख हो गई, राइट? करेक्ट राइट है ना? और यस और अभी ये पूरी रात खत्म हुई, आज की वापस रात आई, तो 11:59 तक ही मैं 2 तारीख कंसिडर करूंगी, जैसे 12 बजे उसको 3 तारीख कंसिडर करूंगी। एब्सोल्युटली बैंग ऑन ठीक है, ओके, डन करेक्ट डन। cool so now everyone is clear with this what she asked for good so कैसा लग रहा है सेशन गाइस एक्साइटिंग बोरिंग मजा आ रहा है सीख रहे हो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स so that I can also fast है slow है वो भी लिख दो am I going too fast or am I going too slow amazing Nisha is saying Anupriya is saying perfect all good Karan is saying exciting very fun perfect pace thank you Nitya speed is perfect very good Nisha Saurav thank you so much guys अभी अपन चालू करने वाले हैं अपनी एक्चुअल जर्नी टुवर्ड्स द न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस ये भी लिखो अभी गाइस न्यूमरोलॉजी में हमको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी क्लाइंट की प्रेडिक्शंस देने के लिए द वेरी फर्स्ट इज नेटिव की डेट ऑफ बर्थ नेटिव मतलब जातक जिसको बोलते हैं इट कैन बी यू योरसेल्फ और योर क्लाइंट द सेकेंड थिंग इज उसका पर्सनालिटी नंबर अभी ये सब क्या है मैं बताऊंगा आप लोग लिख लो सिर्फ अभी द थर्ड थिंग इज उसका डेस्टिनी नंबर फोर्थ इज उसका नेम का फर्स्ट नेम का टोटल एंड द फिफ्थ थिंग इज उसके फुल नेम का टोटल जैसे मैं विवान शर्मा हूं ठीक है तो मेरा फर्स्ट नेम विवान इज अ फोर्थ थिंग कितने पे आता है एंड विवान शर्मा कितने पे आता है ये चीज को आप लोग एस्ट्रिक मार के रख लो क्या 6 हेमंत जी समझा नहीं मैं बिकॉज ये चीज इज अ पार्ट ऑफ मेरे नाम का 6 अच्छा हेमंत हेमंत का या तो जैसे हेमंत 6 पे आता है दैट्स अ फर्स्ट नेम टोटल एंड मिस्त्री कितने पे आता है हेमंत मिस्त्री 3 पे 3 पे ओके टोटल ग्रेट ऑलराइट सो लेकिन ये चीज जो होता है गाइस इसको एस्ट्रिक मार के रख लो आप लोग अभी बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी जैसे अभी ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था सिमिलरली ये चीज आपको नेम नंबर्स के थ्रू मिलता है बट देन आई विल टीच यू वेरी बेसिक ऑफ दिस हाउ टू कैलकुलेट दिस इसका कैलेंडर में आपको टेबल बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं क्लियर एवरीवन विद द 5 रूल्स Cool. Vinita is saying clear. You can guys put in your thumbs up इधर अगर चैट बॉक्स में चैट लिखने में आलस आ रहा है तो आई कम टू नो कि हाँ तुमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है करके ग्रेट करण इज सेइंग ग्रेट ओके गुड यहाँ पे थम्स अप कैसे देते हैं? मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मुझे सिर्फ उड़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ वो नीचे बस ये ऐसे है ही ना डॉट्स पे क्लिक करके हार्ट रिएक्शन लिखा है ना हम्म, रिएक्ट
उसमें एक दिल मिनट। दिल भी मिलेगा, आप लोग दिल भी बेच सकते हो थम्स अप ओ के जगह। ओके 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 हाँ ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, भेजा अच्छा, किसने तो दिल भी दिल अभी। चाहिए आपको? दिल क्यों हाँ देवी हाँ, आपको भी? तो दैट मोटिवेट्स मी ना, यू नो मेरे लाइव सेशंस कैसे रहते हैं। लाइव सेशन में दिल ले लेते हो, अब यहाँ पे तो छोड़ दो। हाँ, वहां पे गुलाब भी मिलते हैं अपने को। चलो, जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडीज नाउ। किसका एरोप्लेन तो नहीं उड़ रहा है ना गाइस? रॉकेट तो नहीं जा रहे ना दिमाग में से? यस, नहीं, नो? वो क्या होता हाँ, है? एरोप्लेन कैसे, मतलब समझ नहीं आया। मतलब ऊपर बाउंसर से? तो नहीं, हाँ बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना दिमाग में से ऊपर? नो, नीलम इज सेइंग नो। गुड, व्हाट अबाउट अदर्स? सो so that means I have very good students and I am also a very good teacher. So clap for everyone. Great. गुड, नाउ लेट्स कम टू दिस। ये आप लोग ने 5 नंबर्स लिख लिए, आप लोग की जो क्लाइंट की होगी या आपके खुद की होगी, आपको यूज करने पड़ेंगे व्हेन यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अबाउट प्रेडिक्शंस ऑफ अ क्लाइंट। अगर डीओबी अच्छी है, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे टाइम क्या होगा पता है, आप आपकी क्लाइंट का देखोगे, अरे इसके तो नेम सॉरी इसका तो डेट ऑफ बर्थ इतना अच्छा है, राजयोग बन रहा है इसके कुंडली में, फर्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बहुत है, राजयोग वाला है, पूरा पूरा पर्सनालिटी डेस्टिनी भी राजयोग वाला है, और इसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों चल रहा है? तो वो उसका आंसर होता है, अगर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अच्छी है पर उसका नेम नंबर अच्छा नहीं है, तो भी उस बंदे को लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल बता देता, सपोज मैं कोई होटल में खाना खाने गया, पालक पनीर, वो बंदे ने पालक पनीर एक लाया मस्त एकदम गार्निश करके, उसको देख के मैं एकदम पागल हो गया, अरे वाह व्हाट अ टेस्टी फूड, इट माइट बी गर्मा गर्म है। बट देन जब भी मैं उसको खाता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है ये तो बासी पनीर है, इट हैज बीन लाइक इन टू द फ्रिज फॉर 4-5 days, पर वो टेस्ट में तो वैसा नहीं है, समझे? तो उसमें हुआ क्या, मेरे को दिखने में तो लगा कि भाई ये तो है एकदम मस्त, पर रियलिटी में क्या था, वो पालक पनीर एकदम बेकार था, इट वॉज नॉट द वे इट लुक्ड। तो अपन को बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे कि अरे इसके तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? तभी हम जाते हैं उसका नेम एनालाइज करने को, कि उसका नेम में क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या कुछ, दैट इज द रीजन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर हिम। क्लियर? सिमिलरली अपना नेम और नेम नंबर जो होता है, फर्स्ट नेम या फुल नेम एंड आवर डेट ऑफ बर्थ शुड अलाइन विद ईच अदर टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन आवर लाइफ। अंडरस्टूड? अगर आपकी गाड़ी चला रहे हो आप एंड आगे के 2 टायर में हवा नहीं है और पीछे के 2 टायर में हवा है, तो क्या आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे चला पाओगे आप लोग? यस और नो? नो। संजय जी सिंह नो, निशाई सिंह नो। ग्रेट, एब्सोल्युटली correct, so good, you guys are understanding everything till now. So I hope everyone is like learning something new right now and बहुत मजा आ रहा है आप लोग को सीखने को। जस्ट से थम्स अप कर सकते हैं आप लोग अगर मजा आ रहा है सीखने को चीजों को। कूल कूल, थैंक यू सो मच, ग्रेट। नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सभी लोग को एकदम ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, अभी हम सीखेंगे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हाउ टू रिमूव योर पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर बाद में सिखाऊंगा मैं, पहले आप लोग को पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर सिखाऊंगा। ये चीज है बहुत बेसिक फाउंडेशन है, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने पेन पेपर सब नीचे रख लेना। मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा, आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनालिटी नंबर और योर डेस्टिनी नंबर। सब लोग को ध्यान से सीखना है ये, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेडिक्शंस ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर योर क्लाइंट। अगर ये नंबर्स आपने गलत कर दिए, जैसे उसका मूलांक भाग्यांक 1 और 2 है, आपने 1 और 3 कर दिया,
या 3 और 2 कर दिया, कुछ भी कर दिया, एक भी नंबर आगे पीछे कर दिए, तो उसकी प्रेडिक्शन पूरी फेल हो जाएगी। एंड वो बोलेगा भाई तुमको क्या आता, कुछ नहीं आता तुमको, तुमने अभी तक जो भी बोला मेरे साथ तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है करके, एंड आपका हो जाएगा वहां पे बहुत बड़ा पोपट। समझे? तो अभी अपन शेयर कर रहे हैं स्क्रीन आपके साथ, तो प्लीज लेट मी नो आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं करके। लेट मी ट्राई टू शेयर द स्क्रीन विथ यू। क्योंकि इधर मेरे को आप लोग दिखोगे नहीं अभी, पर आप लोग को मैं दिखूंगा। दिख रहा है मेरा स्क्रीन गाइस? तो जस्ट पुट इन योर थम्स अप इन द फोटोज, क्योंकि मेरे को इधर हेमंत जी दिख रहे हैं, सिमरन दिख रही है, अनु दिख रही है। ओके, अनुप्रिया सिंह, यस। सिमरन, सिमरन आपको दिख रहा है? ग्रेट, ठीक है। हेमंत जी आपको, तो आई अज्यूम एवरीवन इज एबल टू सी दैट, क्योंकि अभी मेरे को इधर कुछ भी चैट वैट कुछ नहीं दिखेंगे। नाउ सबसे पहले तो मैं आप लोग से मांगूंगा माफी मेरी राइटिंग के लिए। बहुत बेकार राइटिंग है मेरी, उसको समझने की कोशिश करना। अभी लेट्स टेक, आज का एक है डेट ऑफ बर्थ विच इज 19/1/2026। अभी कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, everyone will have your eyes on the screen what I'm trying to teach you guys। मैं आप लोग को लिखने का टाइम दूंगा, एग्जाम ये करने के लिए भी आप लोग को टाइम दूंगा। सो व्हाट इज योर मूलांक नंबर? जो पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? द पर्सनालिटी नंबर आर योर फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ये लिख लो आपको चाहिए तो। Personality number is the first, is a total of the first 2 digits. अब न्यूमेरोलॉजी में एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, आप कभी भी डबल डिजिट्स को प्रेडिक्शन में नहीं लेते, यू गेट इट टू अ सिंगल नंबर। कंपाउंड को आप सिंगल नंबर में लेके आते हो। तो अभी जैसे इधर ये 19 है, तो 19 को अपन को लेके आना है 1 पे, क्योंकि 1 + 9 कितना होता है? 1। सिमिलरली सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23, तो 23 को आप लेके आओगे 5 पे। कूल। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 06, तो इसको क्या करोगे? इसको आप लेके आओगे ग्रेट 6 पे, नॉट इन 7, 6 पे। अनु, ठीक है? हाँ, ग्रेट। तो दिस विल बी 6। अभी सुनो, कोई है 11, इसको कितने पे लेके आओगे? 2 पे। ग्रेट। सो आप लोग को सबको समझ गया पर्सनालिटी कैसे निकालनी है? Yes or no? Just type in the chat box. Cool. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इधर। ऑलरेडी एक डेट लिखा हुआ है 31/6/1999। तो इसमें अभी पर्सनालिटी क्या होगा? सब लोग बताओ। यस, ग्रेट अनु, सुपर। इसमें पर्सनालिटी हुआ आपका 4, बिकॉज 3+1 = 4। इसको हम बोलेंगे पर्सनालिटी। नाउ अभी हम आएंगे डेस्टिनी नंबर पे। डेस्टिनी नंबर देख लो, अभी मैं आपको 2-3 अलग अलग चीज करके बताऊंगा आपको कैसा लेना है डेस्टिनी नंबर। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो डेस्टिनी नंबर में आपको क्या करना है? 3+1+6+1+9+9+9 जितने भी नंबर्स है, यू हैव टू प्लस ऑल दैट। तो कितना आया टोटल बताओ मेरे को जल्दी से।
किस 2 आया? एब्सोल्युटली 2. ग्रेट, 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 सुपर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई हुआ 14/1/2000 का, तो इसका मूलांक और भाग्यांक और पर्सनालिटी डेस्टिनी बताओ अभी जल्दी से। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, सुपर। पर्सनालिटी इज 5, ऑसम। 9, 5, 6, 7, 8, करेक्ट, 8 हुआ ना? सुपर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 1/1/2011, 2 is the personality, super. 7, super. So 7 हुआ इसका डेस्टिनी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस इतना? गाइस, किसको कोई डाउट तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क मी। देन आई विल गो अहेड, अगर इतना चीज आपको क्लियर है तो। अभी वापस से आई विल टेक द सेम एग्जांपल 19/1/2026 टू मेक यू अंडरस्टैंड क्या चीज क्या होता है। लेट्स टेक दिस सेम नंबर 19/1/2026। अभी आप लोग लिखना चालू करो, मैं आप लोग को जो जो बता रहा हूं। तो सॉरी, ये ड्राइंग ना करे इधर, ये स्केच स्केच क्लासेस नहीं है। आप लोग एक दूसरा बुक ले लीजिए एंड वहां पे ड्राइंग कीजिए। इधर ना चलाइए स्केच पेन्स अपने, ये आर्ट क्लास नहीं चल रही है, प्लीज गाइस। ठीक है, तो अभी 19/1/2026 इसमें जो 1 है ना, 1 दिख रहा है, 19 का 1, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी नंबर। लिखो लिखो, बहुत सारे, क्योंकि क्या होता है इनके बहुत सारे नेम्स है, पर्सनालिटी नंबर के और डेस्टिनी नंबर के। तो आपको कोई क्लाइंट बोलेगा मेरा मूलांक क्या है, तो आप बोलेंगे भाई ये क्या होता है, मेरे को तो सर ने सिखाया नहीं मूलांक निकालने को, समझे? तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो नाउ यू हैव टू राइट व्हाट इज दिस कॉल्ड। जो 1 है इसको अपन बोलते हैं पर्सनालिटी नंबर, बर्थ नंबर, मूलांक नंबर। ये दोबारा रिपीट करोगे? हाँ, जो नंबर 1 है 19 का, आप लोग देख रहे हो इधर 19 डेट जो लिखी है, करेक्ट? तो इसका अपन ने पर्सनालिटी निकाले थे। ये रहा, किधर गया मेरा पेन? यस, ये जो 19 दिख रहा है आपको, इसका अपन ने 1 निकाला था, करेक्ट? तो ये इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अपन को घर पे कुछ और नाम होता है, अपने दोस्त अपने को कुछ और नाम से बुलाते हैं, अपने फैमिली वाले कुछ और नाम से बुलाते हैं, क्लास में कोई रहेगा वो अलग नाम से बुलाएगा, करेक्ट? बट देन आपकी आइडेंटिटी तो एक ही है। अभी मैं अनुप्रिया को अनु बुलाऊंगा, कोई उसको कुछ और बुलाएगा। सपोज कोई इसको बुलाता है प्रिया, या चलो कुछ और XYZ भलता ही बुलाता है, इसको गुड्डो बुलाता है। तो मेरे पास कोई आएगा, मैं जानता नहीं हूँ कि गुड्डो कौन है करके, और मेरे को पूछा अरे गुड्डो को देखा क्या तूने, तो मेरे को तो पता नहीं ना गुड्डो कौन है। मैं बोलूंगा नहीं भाई मेरे को तो नहीं पता गुड्डो कौन है, बट देन आई नो क्या अनुप्रिया पूछा है तो मेरे को पता अनुप्रिया तो आई नो। तो सिमिलरली इसको बोलते हैं 5-6 अलग नाम से। तो यू शुड नो ऑल द नंबर्स, बिकॉज क्लाइंट आपको कोई कोई बहुत सारे सीखे हुए आते हैं, वो बोलेगा मेरा लाइफ पाथ नंबर क्या है, बोलेगा भाई ये क्या होता है, मैं तो सीखा ही नहीं, मेरे को तो सर ने सिखाया ही नहीं, आई डोंट नो। आपका लाइफ पाथ नंबर ढूंढने दो मेरे को। तो इसको अभी लिखो आप लोग, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ नंबर, मूलांक, किंग नंबर, रूट नंबर एंड ड्राइवर नंबर। रूट नंबर। रूट, यस रूट, ROOT।
पर्सनैलिटी हो गया, रूट हो गया, ड्राइवर हो गया। द मोस्ट कॉमन सब लोग बोलते हैं इसको पर्सनैलिटी या तो ड्राइवर नंबर। मोस्टली बोलेंगे मेरा ड्राइवर नंबर बताओ, मेरा कंडक्टर नंबर बताओ। अभी आई विल टेल यू व्हाट इज कंडक्टर नंबर। तो वी विल ऑल्सो कॉल इसको आगे से जाके पर्सनैलिटी नंबर। मैं अगर आपको पूछूंगा कि ये बंदे का पर्सनैलिटी नंबर बताओ, तो यू नीड टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर? सो क्या याद रखेंगे इसको अपन? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट गाइस, व्हाट आर वी गोइंग टू टेल दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? ग्रेट। P number, yes. Super. Personality. Yeah, you can say P number. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ P और D। अभी वो क्या है आगे D मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग भी इसको PD बोल सकते हो आगे से। कूल। तो ये पर्सनालिटी, अभी इतना देर से अपन पर्सनालिटी नंबर निकाल रहे हैं, पर ये पर्सनालिटी नंबर होता क्या है, ये करता क्या है अपनी लाइफ में? एनीवन हैज गॉट एनी आइडिया गाइस? ये भी हमारे ट्रेड्स बताता है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। By राइट, the एज name अ itself, नेम सजेस्ट। personality number. So Correct, absolutely. So as the name suggests, it will tell you about your personality. आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आप क्या हो एज अ इंसान, ये आपको बताता है। एंड जो आप लाइफ लॉन्ग रहने वाले हो, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बताता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अब तो और बाकी है। क्या? ये आपको बताता है आपके लाइफ में आपको कितनी स्टेबिलिटी मिलेगी, कितने अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और कहां से ये और कैसी अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपकी जॉब कैसी रहेगी, इवन आपका जो डीएनए में कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो तक बताता है गाइस। अगर एम आई गोइंग फास्ट और स्लो? जस्ट टाइप इन एफ और एस इन द चैट, so I will go. Perfect, ठीक है, सुपर, गुड, थैंक यू। सो आपके लाइफ में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक डीएनए है, ये उस चीज तो बताता है। एंड इतना ही नहीं, अब तो और बाकी है। ये आपको बताता है आपके जो पास्ट कर्मास आप लेके आए हो लाइफ में, पास्ट बैगेजेस, जो कार्मिक बैगेज लेके आए हो, उस चीज को भी ये बताता है बहुत हद तक। एंड अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लेना। जिनका भी पर्सनालिटी नंबर वीक होता है, उनको लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू या तो रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर या फाइनेंस। कोई ना कोई एक इश्यू रहेगा ही रहेगा उनको। अगर आपको कोई बंदा मिलता है कि यार मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, यार मेरा रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं रहता, यार मेरा कभी फाइनेंस कभी अच्छा नहीं रहता, मुझे धोखे बहुत मिलते हैं, तो समझ जाना भाई का पर्सनालिटी नंबर किधर ना किधर बिगड़ा हुआ है। यू नीड टू फर्स्ट लुक इन टू दैट चार्ट में, फटाफट उसका पर्सनालिटी में क्या चल रहा है देखो भाई। क्लियर? सो कुछ इंटरेस्टिंग सीखे। वॉज दिस वाव फॉर यू गाइस? तो जस्ट टाइप इन वाव इफ इट वॉज अ वाव फॉर यू। नीलम इज सेइंग वाव, संजय सिंह वाव, हेमंत is saying wow, great, wow, amazing session, Nitya is saying great, super, चलो, that's nice. Now बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के डीओबी में डबल नंबर नहीं होते।
करेक्ट। जैसे जो 1 से लेके 9 तक बॉर्न हुआ है तो उसके तो सिंगल नंबर है, ये रूल लिख लो। जिनका भी डीओबी 1 से लेकर 9 है, वन टू लेके 9, तो उनका पर्सनालिटी को आप कंपाउंड नहीं करोगे, वो सिंगल नंबर ही उनका पर्सनालिटी रहेगा। कोई एक नंबर को बॉर्न हुआ है तो एक ही रहेगा, 9 को बॉर्न हुआ है तो 9 ही रहेगा, 8 को हुआ है तो 8 ही रहेगा। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज, जो भी बंदा 10 को, 20 को या 30 को बॉर्न हुआ है, इनका भी पर्सनालिटी 1, 2 या 3 ही रहेगा। पर जिनके नंबर्स डबल है, फ्रॉम 11 टू लेके 31 तक, एक्सेप्ट फॉर 20 एंड 30 ये नंबर्स में, उनका आप कंपाउंड लोगे। जैसे 11 का होगा 2 एंड 31 का होगा 4, एग्जाम्पल के हिसाब से। एंड उसको आप लेके आओगे सिंगल डिजिट में हमेशा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सीख रहे हो सब लोग? कूल, ग्रेट। नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट एज अ प्रैक्टिस सेशन। सभी लोग अपने अपने पर्सनालिटी नंबर मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और डेस्टिनी नंबर भी। आई वॉन्ट टू नो एवरीवन्स पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर। सिमरन इज 26, कूल। हेमंत इज 5, 4, 7, 3, 8, अनु। बाकी सब सो गए हैं क्या? What about others? 6 and 1. Okay. Binita is, Nisha is 4, 1. Super. Wonderful. Great, great. तो चलो, सबको समझ में आ गया पर्सनालिटी क्या होता है और डेस्टिनी क्या होता है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। नित्या इज सेइंग 6 and 1. Wonderful. Neelam is saying 7 and 4. Super. Great, great, great. I'm so happy you guys को समझ में आ गया। This is a very basic. Karan is saying 6. Oh, nice, Karan. Good. Wonderful. अभी हम आगे बढ़ते हैं। Now we will calculate our destiny number. आप लोग ने डेस्टिनी नंबर तो कैलकुलेट कर ही लिया है। अब इसको भी अलग अलग नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको लिख लो। इसको फर्स्ट तो बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, सेकंड इसको बोलते हैं क्वीन, थर्ड बोलते हैं ड्राइवर, ड्राइवर तो पर्सनालिटी को नहीं था। सॉरी कंडक्टर, आई एम सॉरी, माय बैड, कंडक्टर इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ। इसमें सबसे ज्यादा वी विल ओनली यूज डेस्टिनी नंबर। क्लियर? एंड इसको अभी शॉर्ट में अपन कभी भी पूछेंगे या अपन इधर भी क्लाइंट्स के लिए प्रेडिक्शंस लेंगे, जब अपन चार्ट्स लगाएंगे, बात करेंगे, तो हम बोलेंगे पीडी बताओ इसका क्या है, पीडी क्या है, मतलब पर्सनालिटी और डेस्टिनी। बाकी सबको भूल जाओ, इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस कि आपको मालूम पड़े कि आगे जाके अगर कोई पूछता है तो मेरे को मालूम रहना चाहिए। कोई नंबर पूछ रहा है तो मतलब वो डेस्टिनी पूछ रहा है, या कंडक्टर पूछ रहा है तो मतलब वो डेस्टिनी पूछ रहा है। क्लियर एवरीवन विद दिस? कूल।
ना अभी जैसे आपको मैंने बताया पर्सनालिटी एक्टिव होती है तो क्या होता है, वैसे ही डेस्टिनी एक्टिव होती है तो उससे क्या होता है, डेस्टिनी नंबर से अपन क्या क्या जान पाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, डेस्टिनी से अपन नेटिव का लाइफ जर्नी बता सकते हैं, उसका करियर कैसा होने वाला है फ्यूचर में, वो बिजनेस करेगा, जॉब करेगा या क्या प्रोफेशन में जाएगा। बहुत सारे लोग आपके पास करियर गाइडेंस के लिए आएंगे, सर मैं क्या करूं, मेरा बेटा क्या करे, मेरी बेटी क्या करे, आगे जाके उसको जॉब कराओ या बिजनेस कराओ, बिजनेस कराओ तो कौन सा कराओ, जॉब कराओ तो कौन सा कराओ। सो दैट ऑल विल गो थ्रू योर डेस्टिनी नंबर। लाइफ में इंसान के कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो उसको कैसे फेस कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं, वो भी आपको मालूम पड़ेगा उसके पर्सनालिटी नंबर से, सॉरी डेस्टिनी नंबर से। ये नंबर आपको ये भी शो करता है कि लाइफ में आपको कितना सपोर्ट मिलता है दूसरों का। अपन बोलते हैं ना, यार मेरे को तो कोई मदद नहीं करता, मैं तो सबकी मदद कर देता हूँ, पर जब मेरे को मदद करने का टाइम आता है तो सब भाग जाते हैं। तो ये नंबर आपको बताता है कि आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। आपका लक फैक्टर आपके पास है या नहीं। आप बोलते हैं अपन लकी तो हूं नहीं मैं, यार उसको देख कितना लकी है करके, ये भी आपको बताता है आपका ये नंबर, डेस्टिनी नंबर। साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज, जैसे आपकी बाई हो गई, कचरा उठाने वाला हो गया, छोटे जो इंसान होते हैं, छोटे इंसान इन द सेंस जो और जॉब्स करते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, वो भी आपका बताता है भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर। इसको मोस्टली मूलांक भाग्यांक बोलते हैं, या तो ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, या तो पर्सनालिटी डेस्टिनी बोलते हैं। ये तीन के अलावा मेजोरिटी कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं कि मेरा ये निकाल के बताओ या वो निकाल के बताओ। क्लियर। अभी लिखो अपने लाइफ में गाइस, जो भी नंबर्स है आपके ग्रिड में, जैसे आज का तारीख है 19/1/2026, तो आपका पर्सनालिटी क्या हुआ आज का और डेस्टिनी क्या हुआ बताओ मेरे को, टुडेज डेट का, जल्दी। पर्सनालिटी इज 1, ग्रेट, एंड डेस्टिनी 3, सुपर, ऑसम। सो ये जितने भी नंबर्स है लाइफ में, दे ऑल आर प्लेइंग रोल्स इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक और तीन ही आपके लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, दे ऑल आर प्लेइंग रोल इन योर लाइफ। ठीक है, बट देन ये जो पर्सनालिटी और डेस्टिनी है, वो आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट 70% रोल प्ले करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ पावरफुल आर दीज नंबर्स फॉर यू। आपकी लाइफ का 70% रोल ये करते हैं, ये चलाते हैं आपकी लाइफ को, द वे इट इज गोइंग ऑन, and your life runs according to this personality destiny number। एंड जो बाकी के बच्चे नंबर्स होते हैं, जैसे अभी 19/1/2026 में 1 चले गया, एक 1 पर 0 1 का है जनवरी का, और 26 का 2 6 है, तो ये जो नंबर है ये आपकी लाइफ में 30% रोल प्ले करेंगे। सो दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज योर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी गाइड्स। 30% ये नहीं समझ आया, मतलब P&D लाइक तो जो हमारा पर्सनल DOB है वो 70% रोल प्ले करेगा हमारी लाइफ में, एंड 30% क्या करेगा वो नहीं समझ नो, आया। नॉट योर पर्सनल डीओबी, योर जो पर्सनैलिटी और ओके। डेस्टिनी है, पीडी, हम्म वो 70% रोल sure। प्ले करता है, एंड जो हम्म बाकी के नंबर्स है वो 30% रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मतलब वो ग्रिड में लाइक जैसे हाँ 19 1 2, इसमें जैसे 9 है, 2 है, 6 है, राइट, ये सारे। करेक्ट, या जो रिमेनिंग नंबर्स है दैट विल प्ले 30% रोल इन योर लाइफ। क्लियर। एंड इनको बोलते हैं सपोर्टिव नंबर्स, जो बचे हुए नंबर्स होते हैं। कोई कोई वेबिनार्स में कोई कोई टीचर्स आपको, जैसे अभी 19 है तो 19 का जब 1 निकल रहा है
तो 1 और 9, तो इसको लोग सपोर्टिव नंबर बोलते हैं। पर एक्चुअल में जो आपके ग्रिड में नंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्टिव नंबर्स होते हैं। एंड ये जो सपोर्टिव नंबर्स होते हैं ये अपना रोल सबसे ज्यादा प्ले करते हैं जब इनकी दशाएं एक्टिव होती है, तब ये आपकी लाइफ में या तो आतंक मचाते हैं या तो आपको ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। अदरवाइज ये शांत बैठे रहते हैं। पर ओवरऑल आपकी लाइफ में आतंक मचाने के लिए, रिजल्ट्स देने के लिए या लाइफ खराब करने के लिए आपके पर्सनैलिटी, डेस्टिनी हर वक्त रहते हैं। लाइक मेरा मेरा DOB 4/12/1983 है, राइट? हाँ, तो पर्सनालिटी नंबर तो ऑटोमेटिक मेरा ये 4 हो गया है ना। करेक्ट। डेस्टिनी टोटल ऐड करेंगे तो हो गया। तो अब जो जैसे मेरा सिंगल नंबर है 4 और 12 आ गया मेरा मंथ, 1983 आ गया मेरा ईयर, तो इसमें हाँ सपोर्टिव नंबर ये 83। हाँ, 8 इज सपोर्टिव नंबर, 3 इज सपोर्टिव नंबर, और दिसंबर का है ना योर बर्थडे। हाँ 12 हाँ 12 हाँ। तो 1 इज योर सपोर्टिव 1 नंबर, एंड 2 3 इज ऑल्सो योर सपोर्टिव नंबर। सपोर्टिव नंबर। ओके। और अगर 4 की जगह 14 होता तो हाँ तो उसको 1 भी वो होता 1 और और 4 4 भी भी होता। सपोर्टिव होता। करेक्ट, टोटल नंबर इंडिविजुअल करके भी अपन सपोर्टिव ही काउंट करेंगे। राइट। वो जो 2 नंबर्स है वो भी आपको सपोर्टिव नंबर ही आएंगे क्योंकि वो ग्रिड में जाने ओके वाले हैं, ओके। राइट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, डन डन। वैसा। क्लियर एवरीवन विद दिस कॉन्सेप्ट? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर इफ यू गाइस आर। ग्रेट, बहुत होशियार बच्चे लोग आप लोग। आई एम वेरी हैप्पी। सुपर, गुड गुड गुड। चलो, अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ये नंबर्स तो हमारे को बता दिए कि ये नंबर पर्सनालिटी होता है, ये नंबर डेस्टिनी होता है, पर अभी ये नंबर्स आपके लाइफ में इफेक्ट कैसे करते हैं? क्लियर? लिखो, आपकी लाइफ का 35 ईयर्स तक ऑफ एज आप आपकी लाइफ में पर्सनालिटी के हिसाब से चलते हो। एंड जैसे ही आप 35 क्रॉस कर लेते हो, योर डेस्टिनी नंबर गेट्स एक्टिवेटेड। अब आप लोग को सोच रहे होगे कि भाई ये पर्सनालिटी नंबर से होता क्या है और डेस्टिनी नंबर से होता क्या है। कि मेरा पर्सनालिटी अगर 4 है तो इससे होता क्या है, मेरा पर्सनैलिटी अगर 3 है तो उससे क्या होगा, और डेस्टिनी नंबर मेरा 8 है तो उससे क्या होगा। करेक्ट? अभी वो सब सोचो नहीं क्योंकि वो है आगे का टॉपिक। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक जो एकदम फाउंडेशन है वो सिखा रहा हूँ। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप टू लर्न थिंग्स एंड वी विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी ऑन दैट। क्लियर? सो लाइफ में इस चीज को याद रखो। अभी तो आप लोग को पता नहीं है कौन से अच्छे पर्सनालिटीज होते हैं, कौन से अच्छे नॉट दैट गुड पर्सनालिटी या डेस्टिनीज नंबर्स होते हैं। तो लाइफ में आपकी पर्सनालिटी नंबर कोई भी हो, मेरा मानना है अगर आपकी लाइफ का डेस्टिनी नंबर अच्छा है तो आपकी लाइफ बहुत हद तक सॉर्टेड रहेगी। ये आपको आगे जाके मैं समझाऊंगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं। Abhi, from me, from last 1.5 year into this field, by seeing more than 5,000 kundlis in Astro Sage and other personal usme, I have seen that after 36, lot of people get their good destiny के results. इधर जो भी 40 प्लस है, 35 प्लस है, they can also see जैसे वो 36 क्रॉस हुए थे
तो उनकी लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा हुआ रहेगा या तो बहुत बेकार हुआ रहेगा. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? इफ यू आर अबव 35 36, जो छोटे हैं वो तो कुछ बता नहीं पाएंगे, बट देन दोज हु आर अबव 35 36, प्लीज चैट इन द चैट बॉक्स एंड से करेक्ट और रॉन्ग. बहुत अच्छा हो रहेगा 35 के बाद आपके लाइफ में, या 30 बहुत बुरा हुआ रहेगा? संजय जी सेइंग करेक्ट, निशा इज सेइंग करेक्ट. ग्रेट. Binita is saying correct. Yeah. So as I told you, क्या है इसके बीच में, एक आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताता हूँ. Anyone has got any idea why this happens? Random thoughts लगाओ. I know it's very difficult. You won't be able to guess, but then too, कुछ कुछ तो दिमाग लगाओ. एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है ये भी आपको याद रहना चाहिए. No one will teach you this. But then as a teacher, it is my duty. दशा ठीक है, that's right. But then as a teacher, it's my duty, क्योंकि कल आपको कोई आपका क्लाइंट आके पूछ लेगा, भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है या रीजन क्या है, बताओ मेरे को भाई. तो उसको बोलना एज पर एस्ट्रोलॉजी 36 साल से लेके 42 ईयर्स तक हर इंसान की शनि की दशा चालू हो जाती है. वो आपकी जो कुंडली में दशा चल रही है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ. ये जेनेरिक दशाज होती है, जैसे 3 साल सन की चली, 9 साल मून की, XYZ. तो वैसे ही आफ्टर 36 ईयर्स शनि की दशा आपकी लाइफ में चालू हो जाती है. तो आपने 36 ईयर्स तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, वो 7 साल में शनि आपको उसके रिजल्ट्स देता है. इसके लिए आपकी लाइफ में इतने या तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं या तो बहुत अच्छी होती है. क्लियर एवरीवन विद दिस? 36 to 36 to 41. फिर 42 से लेके, ये तो ऐसे ही बता रहा हूं, 42 से लेके 46 तक आपकी राहु की दशा चलती है. एंड आफ्टर 47 आपकी केतु की दशा चलती है. दैट इज एज पर एस्ट्रोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आप लोग ने बहुत सारे दोज हु हैव क्रॉस 47 50, आप उनके मुंह से सुनते रहोगे, आपके फैमिली में हो गए कि यार मेरे को तो अभी लाइफ में कुछ करने का मन नहीं है, मेरे को तो लगता है बस जितना कमा लिया है वेरी हैप्पी, आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ. दुनिया छोड़ के जाओ, भगवान में कीर्तन में अपना ध्यान दो. आई डोंट वांट टू गेट इनटू, ना घर बनाना है, ना गाड़ी बनाना है, ना बंगला बनाना है करके. या इट इज फिक्स फॉर एवरीवन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दशा ओवर हियर करण. Those who are near 45 50 will tell this, जो मैं केतु की बात कर रहा हूँ. 36 से उसको सीखना, 36 से 41 शनि की दशा, ये सबके Yes. ऊपर एप्लीकेबल होगी सेम. Yes, these are not the dashas which we are talking about. कुंडली वाली दशा है ये. अच्छा, ओके. आपकी ये मैं आपकी दशा बता रहा हूँ जो आपका शनि एक्टिवेट हो जाता है आपके लाइफ में एवरी बाय इंडिविजुअल. डिफॉल्ट. हाँ, बाय डिफॉल्ट इट गेट्स एक्टिवेटेड. ये फॉर एवरीवन इट इज सेम, जो भी है, ओके. छोटा गरीब से गरीब, अंबानी से अंबानी, एवरीवन. कर्मा दशा, राइट. तो आप देखोगे अच्छा, तो लाइफ में. हाँ, नहीं बोलो. तो लाइफ में आप देखोगे, लाइक जैसे आई टोल्ड यू, 47 के बाद यू विल फाइंड पीपल लाइक लिविंग थिंग्स, कि हाँ मेरे को तो अभी गाड़ी बंगला नहीं बनाना है, जितनी लाइफ चल रही है आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद दैट. तो ये आपको दशाएं करवाती है. इट इज नॉट कि आप चाहते हो करने, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली. क्लियर एवरीवन गाइस? मतलब ये जो आपने बोले यहाँ, तो ये जनरल है ना, सबके लिए इक्वल है, लेकिन फिर Correct. भी लेकिन ऐसे बहुत लोग दिखते हैं जो 47 में भी बहुत एक्टिवेट होते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए. तो हाँ, वो भी तो ऐसा तो नहीं कि उनकी सर, ना, तो फिर मतलब उनकी ना 50s में भी अलग. या प्लीज टेल. मतलब 50s में भी मैंने देखा हुआ है अपने आसपास ही, मतलब दे आर वेरी मच ड्रिवन टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग एंड दे स्टिल वांट टू वर्क हार्ड एंड अर्न समथिंग, ना कि स्पिरिचुअलिटी में वो जा रहे हैं या ऐसे कोई शौक है, मतलब दे आर स्टिल वेरी मच करियर ओरिएंटेड एंड ड्रिवन. तो उस हिसाब से फिर ये कैसे लागू होगा? सो उनकी दशा है. आप अभी जब यू लर्न अबाउट द दशा, एग्जैक्टली आप दशा निकालना चालू करोगे तो यू विल गेट टू नो उनकी तभी क्या दशा चालू हुई है. तो मे बी कोई उनकी वीनस की दशा चालू रहेगी, या तो उनकी कोई सन की दशा चालू होगी. तो दीज दशा है ना, मेक यू मटेरियलिस्टिक.
देयर आर फ्यू अदर थिंग्स मतलब आल्सो, आई फिर विल वो नॉट गेट इनटू डिटेल राइट नाउ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मतलब तब वैसे हम तक लोग उसकी इंडिविजुअल ओर पे डिपेंड करेगा। राइट, पर मेजोरिटी 99% आप देखोगे आपके फैमिली के अराउंड, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर 47-50 गेटिंग मेलोड डाउन इन देयर लाइफ, कि हाँ चलो अभी मेरा जो चल रहा है चलने दो, अपने को भगवान का नाम लेना है, ना गाड़ी बनाना है ना बंगला बनाना है, जितना प्रॉपर्टी बनाना था जितना घर बनाना था बना लिया अपन करके। बट देन देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शनल्स, ओके। द रूल्स एज आई टोल्ड यू 100% कुछ भी चीज नहीं होती है। अगर मैं कुंडली खोलता हूँ एंड उसमें देखता हूँ अनुप्रिया को ये हेल्थ इशू होना चाहिए, पर वो अनुप्रिया को नहीं है, तो इट डजेंट मीन कि मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग है या अनुप्रिया को क्यों नहीं हुआ। इट इज लाइक 5 चीज होगी, उसमें से 3 चीज अनुप्रिया के साथ होगी। इट इज नॉट 100 के 100% चीजें होगी। क्लियर एवरीवन? आर यू guys enjoying the session? Just type in enjoy. Yes. Hemanji saying yes. Yes, enjoying a lot. Great. Amazing. Super. नाउ अभी मैंने आप लोग को बता दिया 36 के बाद तो डेस्टिनी में चेंजेस आते ही आते हैं। इसमें भी डेस्टिनी के ट्रांसफॉर्मेशन के राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल एज। जो आप एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे दैट कम्स नाउ। देयर आर 3 conditions in which your destiny can get activated. How? The very first is after your marriage. जैसा मैंने अभी बोला 36 के बाद आपकी डेस्टिनी एक्टिव होती है। नाउ मैं अभी आप लोग को क्या बोल रहा हूं, आपकी शादी होने के बाद आपकी डेस्टिनी एक्टिव होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज अ कपल हु गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 25, तो उसकी डेस्टिनी एक्टिव हो गई। क्लियर? अगर कोई बच्चा है जो 23 साल 20 साल 21 साल की उम्र में शादी कर लेती है लड़की, 21 इज द मिनिमम एज, सो उसकी डेस्टिनी एक्टिव हो जाएगी लड़की की। शी विल नॉट वेट फॉर 36 ईयर्स की कंप्लीट होने के लिए। फर्स्ट थिंग इज क्लियर विथ एवरीवन, द मोमेंट अ पर्सन गेट्स मैरिड देयर डेस्टिनी गेट्स एक्टिवेटेड। सेकेंड है वो जब इंडिपेंडेंटली अपना खुद का बिजनेस चालू कर ले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग वर्क करना, छोटा मोटा काम करना नहीं, बट देन अ फुल फ्लेज बिजनेस अपना खुद का चालू कर ले, तो उसकी डेस्टिनी एक्टिव हो जाती है। सी आई वॉज 18, सो आपकी डेस्टिनी एक्टिव हो गई थी एट द एज ऑफ 18। क्लियर? एंड द थर्ड वन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 35 years of age or whatever is earlier, your destiny gets activated. लास्ट वाले में आपकी आवाज नहीं आई। हाँ मैं बोल रहा हूँ लास्ट से 35 years के बाद ये योर डेस्टिनी गेट्स एक्टिवेटेड। अगर ये दोनों चीज नहीं हो रही, आपकी शादी भी नहीं हो रही है, आप कुछ बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी डेस्टिनी होगी एक्टिव आफ्टर 35 years ऑफ एज। सो जो भी 35 years ऑफ एज के नीचे है, अभी आप लोग की सबकी पर्सनैलिटी ही चल रही है। क्लियर? गुड। सो अभी आज के लिए अपन इसको इतना ही रखेंगे, बिकॉज यू गाइज विल गेट टू एग्जॉस्टेड एंड ओवरफ्लो हो जाएगा ये। अभी हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। तो किसको कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू गाइज कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। अगर नहीं रहेंगे तो वी विल वाइंड अप द सेशन।
You can raise your hands or unmute yourself and ask me any questions, whatever you have, any doubts you have. Nitya, yes, Nitya, bolo. Bhaiya, the points at the starting you made everyone write 5 points, right? हाँ So हाँ, that I will get in the recording, right? yeah, I will get it in the recording. Can you just explain me like in short? वो it will take a lot of time again. वो सिर्फ explain भी करूंगा. Okay, If I just tell you तो you will not understand मैं क्या बोला हूँ करके. तो फिर मैं रिकॉर्डिंग से कर हाँ, लूंगी. चलेगा. Anyone else? मैं इतना अच्छा टीचर हूँ क्या किसको कोई डाउट ही नहीं है? ठीक है. ऑल क्लियर, ग्रेट. ठीक है. तो अभी अपन करेंगे फिर वाइंड अप. अगर इफ नो वन हैज गॉट एनी डाउट्स तो वी कैन वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ. And then we will meet up again tomorrow at the same time, 9 o'clock. Please be on time so that we can end our sessions on time itself. And आज का session कैसा लगा आप लोग को? Just share few. All clear, enjoyed, looking for next. Thank you so much, Sanjay ji. You can just put in your feedback. Not over here. I would appreciate if you can put in your feedback in the WhatsApp group so that जिन लोगों ने आज मिस किया सेशन उनको फोमो होना चाहिए. Fear of missing out. भाई हमने बहुत कुछ छोड़ दिया. तो कल आएंगे वो खुद ही कि क्या हुआ ऐसा सेशन में जो हमको नहीं मालूम पड़ा. ग्रेट. इमनजीत सिंह, ग्रेट नॉलेजेबल सेशन था. करणी सिंह, विनीता सिंह, नाइस. थैंक यू सो मच विनीता. Yes, we learned a lot today. Thank you so much, Neelam. Cool. Thank you so much, guys. So what we will do is that now we will wind up the session. जिसको भी कुछ questions हो, you can put it in the chat box of the WhatsApp group, and वहाँ पे हम उसके answers देंगे. Anyone has got any doubts तो let's wind up the session and मिलते हैं कल वापस. Till then, सब लोग take care. Goodbye, good night. शब्बा खैर. Bye bye. Bye, भैया. Bye. Take care. God bless you all, guys. Thank you for joining in. Bye. Good night, everyone. Bye. Good night. See ya. Take care. God bless you all. You guys can leave even I'm winding up.